Good afternoon, 8th class. So, we are on our history chapter, the civilizing the native, that is educating the nation. Yani, somewhere the Britishers, how did they think of educating India? And somewhere in our previous class, हमने पढ़ लिया है, there was a tradition of Orientalism, जिसमें few of the scholars were saying कि Indian should be taught in their own language, Sanskrit and Persian. So this will help them to understand things because they are used to studying in these languages. इसके अलावा वो ये भी बोल रहे थे कि इससे क्या होगा, हमारा जो मतलब जो अपने ब्रिटिशर्स हैं वो समवेयर फेवरेट हो जाएंगे, किसके फेवरेट, या एक्चुअली में एटलीस्ट एक्सेप्टेबल हो जाएंगे बाय द इंडियन नेटिव्स। ठीक है, बिकॉज दे विल थिंक हाँ हमारे लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमें अपने में ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो फ्यू एट दैट टाइम दीज फ्यू मदरसाज एंड फ्यू ऑफ द स्कूल्स वर आल्सो ओपन एट दैट टाइम। इनिशियली जो ओपन है उनकी बात है, बट अब हम देखेंगे देयर इज अ सेक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स एंड द इंग्लिश पीपल, ब्रिटिश एंड द इंग्लिश पीपल who are saying that Orientalist studies and Orientalist vision of learning is not up to the mark and it has many flaws. So we will now study about these people and their thought process. Okay, so the topic is grave errors of the East. Now I have earlier also told you East means like Asians, the people who live in Asia. ठीक है, Asians तो Asia in मतलब obviously we know India is a part of Asia. तो इनकी जो literature है उससे related, और उसको इन्होंने बोला था कि these were not actually worth teaching again. Okay, and somewhere उसमें बहुत flaws थे. तो grave errors of the East मतलब ईस्टर्न कंट्रीज जो है उनके लिटरेचर की बात है यहाँ पे, और वेस्ट जनरली कौन होते हैं, यूरोपियंस होते हैं. So they said that from the early 19th century, many British officials started to criticize the Oriental vision of learning. यानी जो Orientalism है या इंडिया का ही लिटरेचर पढ़ाना या इंडिया से रिलेटेड ही चीजें पढ़ाना एंड इंडियन लैंग्वेजेस में ही पढ़ाना. This was something which these people were thinking is not correct, because they were thinking somewhere these are full of errors. So they said that the knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. And they said that the Eastern literature was totally non-serious and light-hearted. मतलब ना उसमें कोई साइंस था, कोई लॉजिक नहीं था, नॉन सीरियस चीजें थी, ऐसे लाइट हार्टेड थी. तो ये बोल रहे थे this would be wrong if Britishers spend their effort and money in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो ये यही बोल रहे थे कि जो ईस्टर्न लिटरेचर है और ईस्टर्न वर्क है, अगर उसी को हम पढ़ाए तो एक्चुअली वी आर वेस्टिंग आवर एफर्ट एंड मनी. क्योंकि ये चीजें क्या होती है, मतलब ये इनका जो काम है अनसाइंटिफिक है, सिर्फ पोएम्स और पोएट्स, ये सारी चीजें लाइट हार्टेड लिटरेचर है, साइंस वाइंस किसी से भी रिलेटेड नहीं है. तो वी शुड नॉट एक्चुअली इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट्स ऑन टीचिंग द इंडियंस दीज एज द पार्ट ऑफ एजुकेशन. ठीक है, सो दे वर सेइंग दैट दिस विल नॉट बी अप्रोप्रिएट. So इसी से related, James Mill was one of those who basically attacked the Orientalists. So attack means are not violence या physically attacking, मतलब the thought process. ठीक है, तो जो जेम्स मिल थे वो इसके अगेंस्ट थे, ओरिएंटलिज्म के और ओरिएंटलिस्ट पढ़ाई करवाने के. British efforts, he declared, should not be to teach the Indian what the natives wanted or what they respected in order to please them and win a place in their heart. The aim of the education ought to be to teach what was useful and practical. So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made, rather than with the poetry and the sacred literature of the Orient. अब ये क्या बोल रहे हैं कि ब्रिटिश जो है उनको अपने एफर्ट जो है नेटिव्स को इस मतलब इस ये नहीं, इसमें नहीं लगाने चाहिए कि नेटिव्स क्या पढ़ना चाहते हैं, यानी इंडियंस क्या पढ़ना चाहते हैं, या भाई क्या वो रिस्पेक्ट करते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि हम उनको खुश कर सके, किसको, इंडियंस को. As we have studied in earlier part, the earlier scholars were saying if we allow them to study in their own language, तो familiar भी होंगे and somewhere they will have a positive impact on the Indians or Britishers, and maybe Britishers will be able to win a place in the heart of the Indians.
तो ये कह रहे हैं हमें कुछ मतलब इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए उनको कि हमें उन्हें खुश करना है या जो वो पढ़ना चाहते हैं उनके दिल में जगह बनानी है हमें, या उनको जो चीज अच्छी लगती है उस हिसाब से वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो चीज पढ़ाना हमारा एम नहीं है। हमारा एम है एजुकेशन का कि उनको ऐसी चीजें पढ़ाए जो यूजफुल है, जो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, साइंटिफिक है। तो इसीलिए इंडियंस को अब हमें साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस के बारे में पढ़ाना चाहिए जो वेस्ट में ऑलरेडी हो गया, यानी यूरोपियन कंट्रीज में, ना कि उन्हें ये पोएट्री और सेक्रेड लिटरेचर पढ़ाना चाहिए। सो व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग, सी अगेन प्लीज अंडरस्टैंड दैट द बैकग्राउंड उनकी ये सोच है कि इंडियंस जो है उनकी उनका जो लिटरेचर है वो सिर्फ ये पोएट्री, ये सारी चीजें हैं और कुछ साइंटिफिक से रिलेटेड नहीं है। दैट इज व्हाट दे सेड। ओके, दिस इज नॉट टोटली ट्रू ऑब्वियसली, बट ये क्या बोले जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुई है साइंटिफिक और जो टेक्निकल एडवांसेस हुई है ना, वो हम चाहते हैं कि इंडियंस को पता चले, और उसके लिए हम इसलिए ओरिएंटलिस्ट वाली उनको पढ़ाई नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर वो पढ़ा रहे हैं तो इट इज of no use because they are unscientific, they are not scientific and they are not actually very serious kind of matter। ठीक है, अब क्या हुआ, बाय 1830s अटैक ऑन ओरिएंटलिस्ट बिकेम वेरी वेरी शार्पर। अब जो इनके ऊपर जो जिनकी सोच ओरिएंटलिस्ट जैसी नहीं थी वो और बहुत ज्यादा समवेयर ब्लंट तरीके से, एकदम साफ साफ और बहुत स्ट्रिक्ट, थोड़ा बहुत नेगेटिव तरीके से वो लोग बोल रहे थे कि ओरिएंटलिस्ट स्टडी नहीं होनी चाहिए, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन और इन्फ्लुएंशियल ऑफ दिस क्रिटिक ऑफ द टाइम वाज थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है, इन्होंने बोला इंडिया, सोचो, एक अनसिविलाइज्ड कंट्री, व्हाट डिड ही से, दैट इंडिया इज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, मतलब इसको सिविलाइज करने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज नॉट अ सिविलाइज्ड कंट्री। No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced। ठीक है, कह रहे हैं इंडिया की या ईस्टर्न की कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं है जो इतनी लेवल की हो या उस स्टैंडर्ड की हो जितनी की इंग्लैंड की है। ठीक है, Who could deny, declared Macaulay, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, कौन इस चीज को मना कर सकता है कि एक सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी was worth the whole native literature of India and Arabia। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक कि कौन मना करेगा कि यूरोपियन लाइब्रेरी की एक जो सिंगल शेल्फ भी है ना ऑफ गुड बुक्स, वो भी किसके बराबर है, पूरे के पूरे जो नेटिव लिटरेचर है इंडिया के पूरा और जो अरेबिया का है। ठीक है, तो सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। मतलब इनके अकॉर्डिंग सिर्फ द लिटरेचर ऑफ यूरोप वॉज, और जो इनका जो वर्क था, लिटरेरी वर्क, जितना भी थ्योरेटिकल और जितना भी रिसर्च वर्क और जो भी इनका स्टडी वाले चीजें थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ एजुकेशन। और इंडिया और अरेबिया का मिला के भी, मतलब इतना पूरा मिला के जो लिटरेचर है वो एक सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी के बराबर है। He urged the British government in India to stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was of no practical use। तो साफ साफ बोल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि पैसे वेस्ट मत करो ओरिएंटल लर्निंग में, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल कोई यूज है ही नहीं, कोई साइंटिफिक यूज है ही नहीं, बस लिखी हुई है चीजें, स्टोरीज है, कुछ मैजिक के बारे में लिखा हुआ है, कुछ लॉजिकल बातें हैं, कुछ पोएम्स है, पोएट्स है, और मतलब लिटरेचर वर्क है। So he was saying that we should not wait, he was saying to British government that it is no use of wasting money, मतलब वेस्ट होगा मनी अगर ओरिएंटल लर्निंग करवाएंगे। So he said that stop in the British government should stop wasting public money in promoting Oriental learning because it was of no practical use। ठीक है, with great energy and passion he emphasized the need to teach English language। ये इन्होंने बोला कि बहुत जरूरी है कि हम इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएं, क्योंकि ये बोल रहे हैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज हम इंडियंस को पढ़ाएंगे तो वो वर्ल्ड के कुछ फाइनेस्ट लिटरेचर पढ़ पाएंगे, मतलब इनके वाले जो इंग्लिश लैंग्वेज में है वो इंडियंस तभी पढ़ पाएंगे अगर इंडियंस
इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज इनको हो, ठीक है। तो इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन द वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। अगर वो ये पढ़ेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है और उनके बारे में जान सकेंगे, ठीक है। दो वी शुड एग्री कि ठीक है साइंटिफिकली और फिलोसफी कुछ कुछ बहुत डेवलपमेंट हुई थी वेस्टर्न साइड में, बट इट डज नॉट मीन कि इंडिया का जो मतलब एंशियंट चीजें हैं या जो एंशियंट काम है दैट इज वेरी वेरी पुअर, इट इज नॉट एट ऑल, इट इज आल्सो वेरी गुड क्वालिटी। वी पीपल हैव आल्सो प्रोड्यूस्ड मेनी साइंटिस्ट, मेनी मैथमेटिशियंस, मेनी ग्रेट वर्क्स एंड ग्रेट स्कॉलर्स, है ना। बट दे वर सेइंग कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है साइंस और फिलोसफी के, उनके बारे में इंडियंस को तभी पता चलेगा अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली इनके अकॉर्डिंग सिर्फ इंग्लिश में जो डेवलपमेंट होती है वो इंग्लिश बुक में लिखी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज में, बेसिकली यूरोपियन में जितनी भी यूरोप में जितनी डेवलपमेंट हुई है। नाउ टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यू एंड कल्चर। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश में जो इंडियंस है उनको पढ़ाएंगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहली चीज तो यही है कि हम जो मतलब जो मिशन है कि इंडिया अनसिविलाइज कंट्री, उसको सिविलाइज करना है। दिस इज व्हाट दे सेड दैट वी नीड टू सिविलाइज इंडियंस। तो ये एक तरीका है इंडियंस को सिविलाइज करने का, ईस्टर्न साइड पे जितने भी कंट्रीज हैं जो हमारे अंडर है उनको सिविलाइज करने का। चेंजिंग देयर टेस्ट मतलब द वे दे थिंक, द वे दे चूज देयर क्लोथ्स, द वे दे लिव देयर लाइफ, वो पूरा तरीका, उनके वैल्यूज, उनके कल्चर, इन सबको हम तभी चेंज कर सकेंगे जब हम इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फॉलोइंग मैकॉलेज मिनट मतलब जो पूरा इन्होंने इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन दिया और समवेयर जो डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑर्डर जो है जिस हिसाब से इन्होंने बताया है, जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट की जो ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इंट्रोड्यूस हुआ, यानी मैकॉले ने जो पॉइंट बोले हैं, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बोली हैं, इसको ध्यान में रख के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इंट्रोड्यूस किया था। इसमें ये डिसीजन हुआ कि इंग्लिश जो है विल बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन विल बी इंग्लिश, ठीक है। एंड स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक कैलकटा मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। एक तो इंग्लिश को मीडियम बनाना है हायर स्टडीज में, और उसके अलावा जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कैलकटा मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, इन सबको हमें क्या करना है, बंद करना है, इनका प्रमोशन नहीं करना, कोशिश करना है कम से कम इसमें लोग जाएं। तो वी हैव टू स्टॉप प्रमोशन, हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन और प्रमोट नहीं करने, ठीक है। और ये तो ये भी बोल रहे थे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये एक तरीके से टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, that that were falling off themselves into decay, यानी ये ऐसे टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस हैं जो कि खुद ही दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड दे वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डीके। English textbook now began to be produced for schools। अब जब ये रूल आ ही गया है, सब जगह ब्रिटिश यही बोल रहे हैं इंग्लिश में पढ़ाना है, इंग्लिश की साइंटिफिक नॉलेज पढ़ानी है, वही सारे सब्जेक्ट उस हिसाब से। तो इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है अब स्टार्ट होने लग गई थी, प्रिंट होने लग गई थी, और स्कूल्स में प्रोड्यूस मतलब स्कूल में अब यूज होने लग गई थी बाय द गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। वही यूज होती थी और बच्चों को अब वही पढ़ना होता था, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ब्लॉग्स है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। लैंग्वेज ऑफ द वॉइस, एम्फसाइजिंग द नीड टू टीच इंग्लिश, Macaulay declared that all parties seem to be agreed on one point, that the dialects commonly spoken among the natives of Indian contain neither literary nor scientific information, and are moreover so poor and rude that until they are enriched from some other quarter, it will not be easy to translate any valuable work into them। सीधा इन्होंने क्या बोला कि जो सारी पार्टीज है इस चीज को एग्री करेगी कि जो नेटिव्स की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है
इंडिया की, उसमें ना तो कोई लिटरेरी इंफॉर्मेशन है, ना तो उसमें कोई अच्छी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, और इतनी पुअर लैंग्वेज है और इतनी रूड भी है। तो इससे कुछ अच्छा कभी भी इनके वर्क से नहीं निकाल सकेंगे हम, या हमें इनसे कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जब तक कि हम इनके काम में कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करें किसी और से, मतलब बेसिकली ऑब्वियसली यूरोप की साइड से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें, तो तभी इसका मतलब बेसिक कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इसमें से निकल पाएगा या कुछ अच्छा। तो अगर हम नहीं करें तो इट विल नॉट बी इजी टू ट्रांसलेट एनी वैल्यूएबल वर्क इनटू देम। अगर इनको एनरिच नहीं किया गया तो इनमें से कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकल ही नहीं पाएगी। तो समवेयर आज हमने ये देखा है देयर इज अ सेक्शन इन आवर प्रीवियस क्लास, एक सेक्शन था ओरिएंटलिस्ट, जो ये बोल रहा था इंडिया का भी वर्क अच्छा है, एशियन वर्क, और उनको उनके लैंग्वेजेस से रिलेटेड ही पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो इसके फेमिलियर है, और क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स के लिए उनके मन में एक जगह बनेगी, एंड दे विल आल्सो फील समथिंग समवेयर, दे विल नॉट बी टोटली अगेंस्ट देम द ब्रिटिशर्स, है ना। Whereas अब आज हमने पढ़ा है about the section who are saying Orientalist education is totally waste of time, effort, money, and is useless, does not have any scientific knowledge, and it's not that good in itself. So that is what they are saying, that we should actually start teaching the Indians in English, and that will help the Indians to know more about the Western scientific knowledge and other literate great works. And that is why finally जो act भी अपना हुआ था, the act of 18 we have seen the act of 1835 जो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें समवेयर यही बोला इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन करेंगे, और जो बाकी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट नहीं करना है हमें। और उसके बाद इंग्लिश बुक्स आ गई थी, बच्चे पढ़ रहे थे, बिकॉज दिस इज व्हाट दे वांटेड, कि हम इंडियंस को चाहते हैं दैट दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ वेस्ट व्हिच इंक्लूड साइंस एंड लॉजिकल लिटरेचर। ठीक है, so with this we wind up today's class. In our next class we will study about the other aspects of education, so with this I wind up the class. If you have any doubt relating to the topic that we have covered, come back with your problems and your problems will be solved. So now meet you all in the next